Good morning, students. Today we start making of the Indian Constitution. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of constitution for a huge and diverse country like India was not a easy affair. ये कोई आसान कार्य नहीं था क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है. At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen. अब आपने देखा at that time the people of India, अब जो people of India जो कि पहले प्रजा थी अब वो जो है राजा का कार्य करने लगी. The country was formed through a partition on the basis of the religious differences. आपने देखा कि कंट्री के दो खंड कर दिए गए, दो पार्ट कर दिए गए, पार्टीशन हो गया रिलीजन के आधार पर इंडिया एंड पाकिस्तान. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remains independent. अब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये आ गई कि जो है जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें ये कह दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होना चाहती है, इंडिया के साथ सम्मिलित होना चाहती है या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है. ये उनके लिए स्वतंत्रता है, वो फ्री है कि किसके क्या करना है उन्हें. तो ये बहुत बड़ी समस्या थी. The merger of these princely states was difficult and the uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of constitution had anxieties about the present and the future of the country. अब आपने देखा होगा कि इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक गैलेक्सी रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसे जो है क्या करना था कि उसे प्रतिनिधित्व करना था इंडिया का. इनके रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि वो भारत के लोगों की तरफ से प्रतिनिधि थे. देयर वाज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. उस वक्त जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, जैसे मताधिकार नहीं था. सो इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उसमें प्रांतीय जो लेजिस्लेचर था वहां उनके जो मेंबर्स थे उन्होंने ही उन्हें चुना. This ensured a pair of geographical country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, but with leaders having the different opinions. In social terms, to the assembly represented members from the different language groups, caste, classes, religion and occupation. हालांकि असेंबली में जो ज्यादातर जो मेंबर थे वो आपने देखा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी जो इसमें जो है सभी असेंबली में इसके साथ साथ जो है सभी लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस और रिलीजन के रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन के लोगों को भी रिप्रेजेंटेड किया गया. The drafting of the documents called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. अब यह Constituent Assembly कहा गया कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाया यानी कि जिन्होंने ड्राफ्ट किया वो डॉक्यूमेंट, वो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली यानी कि उस असेंबली के द्वारा जिसने बनाया गया ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने गए प्रतिनिधियों की असेंबली ने जो सभा ने बनाया था उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब आपने देखा होगा कि जैसे एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 a constitution making body called constituent assembly was formed. यानी कि constituent assembly बनाई गई. Election to the constituent assembly was held in July 1946. अब जो constituent assembly की जो इलेक्शन हुए वो कब हुए? जुलाई 1946 में. ठीक है, तो इसमें the constituent assembly worked in the systematic, open and
consensual manner to become a fully sovereign body. It became a fully sovereign body. Pandit Jawaharlal Nehru moved in the Constituent Assembly the historic objectives resolution, which was unanimously passed. It was Indian Charter of Freedom. Then some basic principles were decided and agreed upon. After passing of the resolution, an advisory committee and various other committees were formed by the Constituent Assembly. Drafting committee chairman chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar prepared a draft of constitution for discussion. आपने पता कि जो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे. Several rounds of the thorough discussion took place on the draft constitution. Constitution को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारी कई बार जो है इसकी डिस्कशन हुए. क्लॉज बाय क्लॉज यानी कि क्लॉज बाय क्लॉज एक क्लॉज को जो है इसमें रिपीट किया गया, डिस्कशन किया गया. The members considered carefully and debated all the clauses for 114 days. यानी कि मेंबर कंसीडर केयरफुली, सभी मेंबर ने पूरी सावधानी पूर्वक जो है उसे कंसीडर केयरफुली एंड डिबेटेड ऑन द जितने भी क्लॉजेस थी उन्हें जो है 114 दिनों तक बहुत उनके ऊपर विचार किया. स्प्रेड ओवर नियरली 3 इयर्स यानी कि लगभग जो है spread over nearly 3 years. All the proceedings इनके लगभग इसके 3 साल तक ये जो है चलता रहा कार्य. All the proceedings and discussion in the Constituent Assembly have been recorded. और जितने भी Constituent Assembly में जितने भी जो डिस्कशन हुई, डिबेट हुए या जो भी डिस्कशन हुआ उसे क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया है. Preserved as what we call the Constituent Assembly debates, जिसे हमने Constituent Assembly के डिबेट्स के रूप में प्रिजर्व करके रखा है, संरक्षित रखा है. The draft constitution was passed or adopted by the Constituent Assembly on the November 26, 1949. It came into force on January 26, 1950. तो ये था आपका Constituent Assembly के बारे में कि किस प्रकार से जो है हमारे संविधान को बनाने के लिए Constituent Assembly का जो है मेन रोल रहा. और आपने देखा होगा उसके बाद आपने देखा होगा कि अब इसमें कुछ एक फैक्टर्स हैं कि द मेजर फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन कौन से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो जो है जिन्होंने योगदान किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उनको जो है एक्सप्लेन करें. तो उसमें क्या है, नेशनल मूवमेंट. फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे नेशनल मूवमेंट. आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल. अब जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो सिर्फ स्ट्रगल नहीं था फॉरेन रूल के खिलाफ. इट वाज आल्सो स्ट्रगल टू रीजुवेनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. सेकंड पॉइंट है आपका रोल ऑफ लीडर्स. रोल ऑफ लीडर्स लाइक मतलब बहुत नेताओं का क्या रोल रहा, जैसे देखा होगा आपने लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स हैड प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. अब आपने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही एक ड्राफ्ट बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के लिए. अब नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल. द फॉर्मेलिटीज familiarity with the political institutions of colonial rule also helped develop and agreement over the institution design. अब ब्रिटिश का क्या रोल रहा, familiarities with political institutions of colonial rule also helped development arrangement. जो हमारे colonial टाइम के familiarities political institutions थे colonial rule के टाइम में also helped, तो उससे हमें मदद मिली develop an arrangement over the institutional design. ये जो institutional design करने
लिए हमें मदद मिली। आपने देखा होगा कि 1935 का जो एक्ट है, इंडियन एक्ट 1935 है, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा जो है ब्रिटिश जो कॉलोनियल पीरियड में जो है बनाए गए जो प्रावधान थे यानी प्रोविजन थे, लॉ थे, वो जो है आज भी इसमें सम्मिलित है। ब्रिटिश रूल एंड द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश रूल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, the experience gained by the Indian in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institutions। अब जो आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम में, इनके कॉलोनियल टाइम में इंडियन जो लोग है उनके साथ जो लेजिस्लेटिव में काम किया था, उससे उनको बहुत बड़ा तजर्बा मिल गया था, एक्सपीरियंस हो चुका था उन्हें, जिससे जो है वो बहुत ही यूजफुल फॉर कंट्री, वो बहुत ही यूजफुल रहे कंट्री के लिए इन सेटिंग अप इट्स, यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ड्राफ्टिंग की गई तो उसका जो है वो एक्सपीरियंस जब ब्रिटिश लेजिस्लेटिव में उन्होंने जिन्होंने वर्किंग की थी तो वो काम आया। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इवेंट ऑन फॉर रेवोल्यूशन। तो वर्ल्ड इवेंट फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वर्ल्ड इवेंट ऑफ रेवोल्यूशन। मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने देखा होगा कि जो जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जब आपने देखा होगा 1776 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ अमेरिका में, तो इससे इन जो इवेंट्स जो पहले घटित हुए थे, आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, so they incorporated some good points of the constitution of the country in the Indian constitution। अब आपने देखा होगा इन कंट्री से या इन वर्ल्ड इवेंट से जो है और रेवोल्यूशन से भी जो है हमारे जो लीडर्स थे वो इंस्पायर्ड हुए और उसे जो है वहां से भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में या उसमें मदद मिली। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किससे ली गई है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहां से ली गई है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। कंसेप्ट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, फॉर्मर यूएसएसआर यानी कि जो आज रसिया है, पहले क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, तो इसमें जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन यानी कि उससे लिया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे कंट्रीज के यानी कि नियर अबाउट जो है हमने जो है बहुत सारी के लगभग जो है 60 से भी ज्यादा कंट्रीज का जो है अध्ययन करने के बाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 60 नियर अबाउट द नियरली 60 कंट्रीज का जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है थॉरोली जो रीडिंग करी, उसके बाद जो है हमने अपना ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो ये था आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ you will do reading and make reading based questions and writing in your notebooks. Next, guiding value of the Indian Constitution. We will start tomorrow. There are 2 topics left: institutional design and guiding values of the Indian Constitution. Thank you.